Then we'll start. माधुरी, कैमरास ओपन कर लो आप सभी। माधुरी, प्लीज ओपन योर कैमरा। बाकी सारे सेशंस हो गए आप लोगों के? थिंक ये लास्ट है शायद। छाया, खुशी, वंशिका, प्लीज ओपन योर कैमरास क्विक। जी, कैन यू just briefly introduce yourself, थोड़ा थोड़ा सा, for which entry you are going, and from where you are. That's all. छोटा सा introduction with your name, entry, and when you are going. Okay, we'll start with Abhilasha. Okay, so ma'am, I'm Abhilasha Kumari and I'm from Bihar. And currently, I don't have any entries as in front of me. It's just my last attempt, FCAT August. So So, that's all. okay, for going for which branch? ADM and logistics. Flying के खत्म हो गए रिम्स? Yes. Vartika, I know you are going for the FSB. Okay, Juhi, what about you? Jai Hind, ma'am. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. My AFSB is on 4th May, Varanasi. Got it. Okay. And Himadri, what about you? Ma'am, I'm going for two entries. One is for FCAT entry and second is Tech entry Navy. When is your That's in FCAT? June. Both of them are in June. First June and Navy is in the last week of the June. अच्छा, कोई 31st of August को जा रहा है क्या देहरादून? Anyone? अच्छा है। छाया, what about you? Ma'am, actually, my name is Chaya and I'm from Uttar Pradesh. And right now, I don't have any entry in front of me. Okay. Khushi. Hello, ma'am. Jai Hind. My name is Khushi Bhadoria. I'm from Gwalior and I have given 5 attempts, 3 conference, 2 screen out, and I'm going for one AFSB Dehradun on 1st June, and later I have my Navy Tech also. Okay. Shweta. Ma'am, my name is Shweta Avasthi and I'm from UP, going for FCAT entry 1st June. Until now, I've given 5 attempts. Conference or screen out recommended. 1st of June वाले काफी हैं इसमें। वर्तिका, देखना सब मिलेंगे वहां पे। निक्की. Hello, ma'am. Ma'am, my name is Nikita Bhandari, and I'm from Dehradun, Uttarakhand. And I have already given my 2 attempts, and now I have my FSP on 4th of May in Varanasi. Ankita. Hello, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my name is Ankita Yadav and I'm from Chandauli, Uttar Pradesh. And this is my second attempt of SSB, NSB Vizag, which is on 14th May. First one was in for FSB, in which I got screened out. And my FSB is on 1st June Varanasi. Okay. Megha. Yes, ma'am. Your introduction with your name and the entry for which you are going. That's it. Myself, Megha Prakash Patil. I'm going for the tech entry in the upcoming June month, and this will be my 7th attempt. Got it. Anyone else? Tanu, Nisha, Sakshi. If you want to give your introduction, please open your cameras and then we'll start. Huh. Nisha, yes. Good morning, ma'am. My name is Nisha. I'm from Jeev, Haryana. I'm going for serious OT entry on 10th May in Bhopal, and this will be my 4th attempt. Tanu. Tanu, am I audible?
Yes, ma'am. Yes. Okay. My name is Tanu. I'm from Sonipat, Haryana. This is going to be my 8th attempt, and my attempt is in Bhopal, 22 SSB Bhopal for CDS OT entry. And till now, I have seen 3 conferences and 4 screenouts. Deepika. Not it. अच्छा, WPOLLH, यार ये आपका कैसा यूजर नेम है? सॉरी मैम, वो शायद मेरे पापा का यूजर नेम. Good afternoon, ma'am. My name is Swati Gupta. I'm from the city of Joy, Kolkata, and upcoming is my SSCW Tech entry, which will be my 11th attempt in Bangalore. 29th, yeah, 29th June is my reporting. Got it. So you know the agenda कि हम आज क्यों आए हैं साथ में, right? For specifically discussing the TAT, female, right? For the female entries. Okay. Shall we start? Anyone else who wants to give the introduction? Just a minute, ma'am. I'll join back. Yeah, sure. Good afternoon, ma'am. My name is Priyanka. I'm from Gurugram, Haryana. My SSB will be on 10th of May. This will be my second attempt for CDS OTA. Wow. Okay. Anyone else? No? Oh, so got it. Everyone is here, right? Shall we start? Quickly give me a thumbs up. Okay. Right. So our screen is visible, right? Yes, ma'am. So basically, you all know the basics of TAT, right? Everything has been taught to you by Ayush. Got it? Yes? सब कुछ पढ़ाया हुआ है सर ने? But basically, we are here to discuss upon कि अगर फीमेल एंट्री के स्पेसिफिक से हम जाते हैं तब हमारे लिए, क्योंकि टीएटी जो होती है मेल एंड फीमेल्स की अलग अलग आती है, राइट? सो अगर हम फीमेल स्पेसिफिक एंट्री से जा रहे हैं तो उस केस में हम क्या उसकी डेजिग्नेशन लेंगे, राइट? व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू, ठीक है? और आई विल ऑल्सो शेयर कि मेरे जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें क्या क्या पिक्चर्स आई थी पीपीडीटी की. इवन सम ऑफ द पिक्चर्स आर हियर एज वेल. तो उसमें आई विल लेट यू नो, ठीक है, कि क्या कैसे करना है. गॉट इट? चलो ठीक है. अब देखो, आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग, गॉट इट? क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दिस, आप सर से पढ़ चुके हो ऑलरेडी. तो थीम्स आप भी मुझे बताओगे, ठीक है? एवरीवन विल कम अप विद देयर ओन थीम्स. ओके, देयर आफ्टर विल डिस्कस अपॉन द थीम्स कि हाँ ये वर्केबल थीम है या वर्केबल थीम नहीं है. गॉट इट? देन विल डिस्कस अपॉन कि हम अगर लड़की है ये, इसको हम क्या डेजिग्नेशन दे सकते हैं. एंड यस, सुनो, आपका टीएटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके पीआईक्यू से. अगर आपका पीआईक्यू और आपका टीएटी काफी ज्यादा मैच करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनसीसी एंट्री, ठीक है, अगर आप एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको यूनिफॉर्म वाले पिक्चर्स आती हैं, अ लेडी इन यूनिफॉर्म, ठीक है? तो आप उसमें 2 से 3 जगह टीएटीज में अपना एनसीसी का पूरा थीम लाओगे, राइट? अब सर ने आपको बताया है कि आपको फॉर डेवलपिंग योर माइक्रो एक्शंस एंड ऑल एनसीसी हैंडबुक पढ़ने को बोला है सर ने. यस, बोला है ना? गुड, ठीक है. अब उस एनसीसी हैंडबुक को पढ़ने का एजेंडा क्या होता है, यू नो? उसका एजेंडा देखते हैं कि एनसीसी हैंडबुक का एजेंडा बेसिकली क्या होता है. समवन हु हैज डन एनसीसी है? किसने किया है ऐसा कोई? was a part of NCC? खुशी, स्वाति. Okay, can you tell me, even I was in the NCC, ठीक है, can you tell me कि उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं? जल्दी जल्दी मुझे बताओ. मैम, फॉर एग्जांपल ड्रिल्स होता है, मैपिंग मैपिंग, कम्युनिकेशन. मैपिंग एंड कंपास को एक साथ ले लेंगे, राइट? हाँ, एफसीबीसी. यस, टेंट पिचिंग, FCBC. Then here comes this tent pitching, right? सोशल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस, योगा डे सेलिब्रेशंस. ये जो सोशल एक्टिविटीज है ना, ये आपके कॉमन सिलेबस में आ जाएगा, जो आपका कॉमन सिलेबस होता है, राइट?
ओके, अब ये सोशल एक्टिविटीज आपके कॉमन सिलेबस में आ जाती है। अब इनमें भी अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, राइट, कि कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटीज आपकी सोशल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल आपका ये होता है फर्स्ट एड वाला क्लास होता है, राइट, है ना, फर्स्ट एड का आपका क्लास होता है। देर आफ्टर आपकी Yes. फायर वाली क्लासेस होती हैं, फायर फाइटिंग क्लासेस, Hmm. राइट। फर्स्ट एड में तो चलो ठीक है, एक आपका ये हो गया। इवन फायर फाइटिंग में व्हाट माइक्रो एक्शंस यू कैन ऐड इज कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक, एक होता है कि सिलेंडर की फायर कैसे वो करते हैं, राइट, वो आपको सिखाया जाता है ना। एक होता है कि हाँ, अगर बल्क में फायर लगी हुई है कहीं पे, तब तो उसमें चलो पानी का यूज करोगे आप, ठीक है। एक होती है बल्क वाली फायर, वो आ जाता है आपका, राइट। सिलेंडर का यूज आ जाता है कि आप सिलेंडर में अगर फायर लगी हुई है, तो आप उसका जो नॉच होता है उसको बंद करने के लिए क्या क्या करोगे। सबसे पहली चीज कि अगर सिलेंडर लीक हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीकिंग, ठीक, लीकेज में और फायर में डिफरेंस होता है, राइट। लीक क्या होता है, जब सिलेंडर का जो नॉच होता है वो सिर्फ खुला रहता है ना। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू सिंपली, आपको सिखाया जाता है एनसीसी में, अगर आप नहीं भी हो एनसीसी में स्टिल आपको एनसीसी हैंडबुक पढ़नी है, ठीक है। फ्रॉम देयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ माइक्रो एक्शंस फॉर योर टीईटी पिक्चर्स, राइट। अब लीकेज में और फायर में डिफरेंस होता है। लीकेज में क्या होता है बेसिकली कि आपका आग वो जो है, लाइक आपको जो एलपीजी है गैस में, वो लीक हो रहा है, उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक। सिंपली आप उसके नॉच में जाकर अपना हाथ, अपना फिंगर जो है वैसे पुट कर सकते हो, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। इवन फॉर द केस ऑफ फायर, अगर उसमें फायर लगी हुई है, तब आप क्या करोगे, यू कैन यूज अ बकेट फॉर दैट, ये भी सिखाया जाता है, राइट, सिखाया जाता है ना, कि बकेट को आप जाके उसमें ऐसे कर दोगे, तो उससे क्या होगा बेसिकली, आपका ऑक्सीजन रुक जाएगा जहाँ उसके अंदर, तो आपकी फायर भी बंद हो जाएगी, है ना। दिस इज समथिंग दैट इज लॉजिकल, राइट, कि ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि आप यू कैन यूज वो बोरा वगैरह होते हैं ना, देखा होगा, जूट की, राइट, जूट के वो आप यूज कर सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन यूज कि वूलन का कोई भी कपड़ा, ब्लैंकेट वगैरह आप यूज कर सकते हो, और उसको जल्दी से उसके अंदर रैप कर दो। अब मेक श्योर कि आपका जो वो है ना, अ, उस वो जैसे बोला जाता है कि गीला कपड़ा हो अगर, ठीक है, अगर वो भीगा हुआ हो, तब इट इज मोर इफेक्टिव इन दैट केस। क्यों, क्योंकि वो एकदम से चिपक जाएगा उसमें, ठीक है, रैप अप हो जाएगा अच्छे से अगर वो गीला होगा, ठीक है। सो दीज आर समथिंग स्मॉल स्मॉल माइक्रो एक्शंस जो आप अपने उसमें स्टोरीज में ऐड कर सकते हो, राइट। तो अपनी एसएसबी से पहले एनसीसी हैंडबुक की जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, राइट, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना, राइट, गॉट इट। एनसीसी हैंडबुक जरूर से जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ओके, चलो, अपार्ट फ्रॉम फायर फाइटिंग व्हाट एल्स आर द सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम। मैम विथ रिस्पेक्ट टू एयरविंग, एरो मॉडलिंग थी, फ्लाइंग थी। यस, एयर मॉडलिंग, डेफिनेटली। एरो मॉडलिंग। अब सही है, एरो जी। मॉडलिंग होता है। अब और बताइए, फ्लाइंग वालों को, फ्लाइंग। इवन नेवल वालों को ना, फ्लाइंग। नेवल विंग वालों को, दे ऑल्सो विजिट कहाँ पे, शिप्स वगैरह पे उनका विजिट वगैरह होता है, राइट। मैम उन्हें सेलिंग भी कराई जाती है, बोट यस, रेसिंग। उनकी सेलिंग भी होती है, एवरीथिंग इज डन। और क्या क्या होता है, ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं। ट्रैकिंग कैंप्स होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग ये आपका ट्रैकिंग में ही आ जाएगा, ठीक है, सब पार्ट हो जाएगा उसका। एल्स आपके ये वाले सीएटीसी भी ले सकते हो आप, ठीक है, सीएटीसी होता है सीएटीसी, आपका, एटीसी होता है ना, देन आर्मी ईबीएसबी, अटैचमेंट कैंप होता है आपका, और ईबीएसबी, कौन सा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ईबीएसबी, ईबीएसबी, यस, और थल सेना कैंप, आरडीसी। आरडीसी, ठीक है। तो अब जो नहीं थे एनसीसी में, उनका काम क्या है, उनका ये होमवर्क है कि आप इन सारे कैंप्स के बारे में जाके रिसर्च करोगे, ठीक है, मेरे साथ लिखते जाओ ये सब चीजें, गॉट इट। आप इन सब कैंप्स के बारे में जाके रिसर्च करोगे कि इन सब कैंप्स में स्पेसिफिकली क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इनका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, और इनके जाने के लिए भी इसमें अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं कुछ जो होनी चाहिए आपके पास फॉर गोइंग इनटू दीज कैंप्स,
आपका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ठीक है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली आपका जो फ्रेंडली नेशंस है हमारे, राइट, उनकी एनसीसी जो होती है, हमारी जो एनसीसी होती है वो तो हमारी है, राइट, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है, ठीक है, उनके साथ जो अब उनके वहां पे अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी यूथ की, राइट, हमारे यहाँ जैसे एनसीसी है उनके यहाँ पे उनकी अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कजाकिस्तान के साथ होता है, और आई थिंक नेपाल के साथ भी होता है नेपाल, हाँ। यार, और तो यार याद नहीं आ रहा कुछ, आई थिंक श्रीलंका के बांग्लादेश, साथ भी होता है, रशिया, वियतनाम। रशिया वियतनाम भी होता है, ओके। और बताइए। बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, अब समझ में आ गया। यस, ग्रेट। अब आ जाते हैं पिक्चर पे, राइट। ओके, अदर देन दैट ऑल्सो और भी चीजें होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और सोशल एक्टिविटीज आपकी क्या हो गई अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ वाला हो गया, एंड फर्स्ट एड हो गया, आपका फायर फाइटिंग हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी होता है, हाँ, जब गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर, चलो हाँ ठीक है, उसकी आप प्रेप वगैरह करवा सकते हो, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया। एनीथिंग एल्स? वो तो आपका ड्रिल में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैम आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट। वेपन ट्रेनिंग भी होता है, राइट। मैम कम्युनिटी इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट सोशल सर्विस में कम्युनिटी आएगा। डेवलपमेंट, ओके। और बताइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंडक्ट करते हैं ना जूनियर्स के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमारी वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगती है, राइट। हम्म। तो वहाँ पे हमारा काम होता है टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, ओके। व्हाट एल्स? और कुछ आ रहा है जो दिमाग में आपको, याद में, याद आ रहा है? एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप ये भी करवा सकते हो ना, क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मेशंस वगैरह की भी प्रैक्टिकल वो होती हैं, राइट। अब जिन्होंने एनसीसी नहीं किया उन्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, राइट, अभी, कि इनका मतलब क्या होता है, सेक्शन फॉर्मेशन वगैरह क्या होती हैं। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू गो एंड सर्च ऑन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि होता क्या है बेसिकली ये सब, ठीक है? मैम ये हाँ, सेक्शनल फॉर्मेशन तो ड्रिल में आ जाती है ना? वो ड्रिल एक होती है ना, वो ड्रिल अलग होती है, ठीक है। एक तो वो वाली होती है अच्छा। कि है ना, टी स्क्वायर वगैरह ड्रिल हो जाए आपकी। एक ये अलग ड्रिल होती है, ये आपका प्रैक्टिकल बेसिकली ज्यादा होता है ना। Got it? डीएसटी टेस्ट हाँ, उसको डीएसटी, टी कंक्लूड स्क्वायर ड्रिल करेंगे। वही होता है। हम्म। चलो, गॉट इट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पिक्चर, okay, so how many characters do you see in this picture? 5. 5। 5 characters, कोई कंफ्यूजन कैरेक्टर्स में? मैम कैरेक्टर्स नहीं सही से देखते हैं, ऑल क्लियर, राइट। अब ये एक बंदी आपको दिख रही है, ठीक है, काफी मेच्योर है, ठीक है, एज अच्छी खासी है इसकी, अच्छी खासी मतलब यू कैन इमेजिन कि 20s या 30s में है, राइट, इतना हम मान सकते हैं, यस। अब ये जो आगे खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, क्या आपको ये लग रहा है कि ये इसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं? यस, नहीं हो नहीं, सकते, व्हाई? एक फीमेल दिख रही है साड़ी में। मेरे साड़ी में। मैम सेकंड जो मेल है उनके मूछें दिख रही हैं। हाँ। ग्रेट, ये दिख रहे हैं, राइट, इनके मूछें ना। तो अब बताइए, अगर ये स्कूल का या कॉलेज का सीन नहीं बन सकता तो क्या बना सकते हैं हम इसको? व्हाट एल्स कैन यू मेक? किसी विलेज का सीन। विलेज सीन। विलेज का सीन, क्योंकि पीछे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, विलेज सीन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये एक पार्क का सीन भी हो सकता है, राइट, है ना। विलेज हो सकता है, पार्क हो सकता है, और बताइए और क्या हो सकता है? पीछे ग्राउंड है और पेड़ दिख रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, फील्ड टाइप की है, मोस्टली इट इज फील्ड, राइट। तो आप आपने अकॉर्डिंग कुछ पार्क वगैरह आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ये विलेज भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब आप मेन कैरेक्टर किसको लोगे, विच इज द कैरेक्टर जो आपको इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हुए दिख रहा है, बीइंग अ फीमेल, दिस लेडी, द वुमन। यस, लेडी। दिस इज द लेडी जिसको आप अपना मेन कैरेक्टर लोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेन कैरेक्टर।
अब मुझे इसमें बताओ, कैन यू फील लाइक कि ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं और द लेडी इज गिविंग सम काइंड ऑफ एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस टू देम? यस। तो यहाँ पे कुछ एडवाइस आ रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अब वो किस चीज पे हो सकता है? एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस किस चीज पे दे सकती है? दे मे बी रिलेटेड टू सम कम्युनिटी प्रोग्राम हो सकता है, राइट? जो ये कंडक्ट कराने वाले हैं, काइंड ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम, है ना? कम्युनिटी प्रोग्राम हो गया या फिर कोई ग्रुप टास्क हो गया जो ये करने वाले हैं, एंड द लेडी इज द हेड फॉर दैट टास्क और द प्रोग्राम। यस, कैन वी टेक दिस? यस। नाउ मैम हाँ, और कोई इंफॉर्मेशन पास करना लाइक गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड और सम डेवलपमेंट रिलेटेड? ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे हो जाएगा ऑफ स्कीम्स के बारे में बताना है ना, राइट? हाँ, यस, राइट, यस। ओके, अंडरस्टूड। मे बी वो कुछ हाँ, अवेयरनेस करा रही हो। करेक्ट। तो कम्युनिटी प्रोग्राम में बेसिकली आपका अवेयरनेस हो जाएगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इसमें, है ना? अब आपको ये दिख रहा है कि पीछे ग्राउंड वगैरह है, तो इसमें ये क्या करवा सकती है? अब सबसे पहले इसका डेजिग्नेशन डिसाइड करो कि इसका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। अगर हम एक ये फील्ड एरिया ले लें और ये हमारे कुछ आदमी खड़े हुए हैं, हो सकता है कि ये इसी के सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, है ना? इसी के टीम के मेंबर हो सकते हैं, राइट? तो इनको हम सबॉर्डिनेट्स मानेंगे इनका। अब इफ यू आर इन अ फील्ड, आप फील्ड में हो, तो आप क्या क्या चीजें करवा सकते हो इसमें? थिंक अपॉन दिस। एक पेड़ माँ के वो नाम जो कोई स्पेस है प्लांटेशन लगाए। उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ग्राउंड, लाइक प्लेइंग ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन। इंस्टॉलेशन ऑफ, क्या हम यहाँ पे ओपन जिम का इंस्टॉलेशन वगैरह करवा सकते हैं? सिंस इट्स ग्राउंड, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ एन ओपन जिम ये हो सकता है, राइट? बट फॉर दिस थिंग, इस लेडी को हम क्या बनाएंगे देन? क्या बना सकते हैं? इसका डेजिग्नेशन क्या देंगे हम? क्या ये वीडियो। हमारे, हाँ, वीडियो, ओके, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यस, और बताइए। अगर ये विलेज का भी हुआ तो इसको हम वीडियो भी दे सकते हैं, राइट? यस, अगर इसको हम विलेज कंसीडर कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, और इसको हम किसी एनजीओ का मेंबर भी बना सकते हैं। एनजीओ का हेड नहीं बनाएंगे क्योंकि हेड कभी भी नहीं आता ग्राउंड पे, राइट? वो अपने नीचे वालों को भेजता है, ठीक है? तो डेजिग्नेशन हमेशा वैसे लेनी है जिसमें आप ग्राउंड जीरो पे आके अपने मेन कैरेक्टर से काम करवा सके। समझ में आया? यस, गुड, ओके। वीडियो हो सकता है, अदरवाइज एक एनजीओ का कोई भी वॉलंटियर हो सकता है, ये लड़की वॉलंटियर हो सकती है। और क्या हो सकता है बताओ, थोड़ा सोचो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग गांव करो। का या किसी, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस एज अ विलेज प्लेस, तो ये सच जैसे सरपंच या सचिव भी हो सकती है। पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी ना, वही सचिव, राइट? सेक्रेटरी को ही बोलेंगे ना, खुशी? पंचायत सेक्रेटरी। मैम यस, मैम अगर कोई सोसाइटी का पार्क ले और जैसे आपने कहा था कि मतलब ओपन जिम बनाएंगे तो सोसाइटी की सेक्रेटरी भी तो हो सकती है। यस, सोसाइटी की भी सेक्रेटरी हो सकती है। अगर पंचायत का ले रहे हो तो सोसाइटी का भी ले सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, ये थीम हो गया हमारा एक, कि इंस्टॉलेशन ऑफ ओपन जिम हो सकता है। और क्या थीम बना सकते हो आप इसमें? सम मोर थीम्स। मैम उस पे बना सकते हैं जो अभी सेंसस चल रहा है उससे रिलेटेड। सेंसस फॉर लाइक कौन सा, एसआईआर वाला? नहीं नहीं, एसआईआर वाला नहीं, अभी ये कास्ट स्टार्ट होने वाला सेंसस? है ना। कास्ट सेंसस को हाँ, लेके? नहीं नहीं, अभी जो हमारे इंडिया का सेंसस चल पॉपुलेशन रहा है ना। सेंसस। कौन सा वाला? डिजिटल सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस आई थिंक। हाँ हाँ, वही पॉपुलेशन पॉपुलेशन सेंसस, वाला। तो इसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, अभी पूरा कंबाइंड चल हाँ रहा है, हाँ, राइट? हाँ, लेकिन देखो यस यार, मैम। कर तो सकते हैं, बट डोंट यू थिंक कि सेंसस को लाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ पेन्स एंड कॉपीज की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? है ना? बट वो तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे इनके हाथों में, राइट? तो सेंसस के अलावा कुछ और सोच सकते हैं हम।
क्या हम गांव में कोई फेयर कंडक्ट करा सकते हैं इसमें कि लोकल हैंड इवन सोसाइटी में भी आप करवा सकते हो काइंड ऑफ फेट हो जाएगी, या आपका फेयर हो सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई एग्जीबिशन, यस इट कैन बी अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और it can be an exhibition. Got it? तो हमारे कितने तीन चार थीम्स निकल के आ गए इससे, राइट? यस। देखो यार, एक होती है ना आपकी स्टिमुलस बेस्ड पिक्चर्स, और एक होती है आपकी जिसमें स्टिमुलस ज्यादा कुछ नहीं दिया रहता, ठीक है, वो न्यूट्रल थीम्स होते हैं। अब ये वाली जो पिक्चर है ना, ये आप गई आके आपके न्यूट्रल थीम्स पे, ठीक है? क्योंकि इसमें फिर आपको ज्यादा आइडियाज नहीं आते जब आपके न्यूट्रल थीम रहता है। लेकिन जब आपको वहीं पे स्टिमुलस दिया रहता है कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की के हाथ में गन दी हुई है तो गन इज योर स्टिमुलस इन दैट केस, है ना? तो उस टाइम पे चलो थीम आ जाता है कि हाँ यहाँ पे हमारा सबसे पहले करेज फैक्टर आएगा, है ना? वो चलो आ जाता है कि हमें उसमें कैसे काम करना है, वो तुरंत हिट करेगा आपके दिमाग में। बट जब आपकी ये कौन से पिक्चर्स आती हैं, लाइक न्यूट्रल पिक्चर्स, जो न्यूट्रल पिक्चर्स आ जाती है ना, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि हम क्या थीम बने। तो इन दैट केस यू हैव टू लाइक बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि हाँ बैकग्राउंड किस चीज का है, क्या क्या कपड़े पहने हुए हैं इन लोगों ने, राइट? इन सब चीजों पे आप जब ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आपका इजिली जो होता है ना थीम वगैरह आने लगता है। गॉट इट? समझ में आ गया ये पिक्चर? आगे बढ़े कि अभी हमें 17-18 पिक्चर्स डिस्कस करनी है। बढ़े आगे? गॉट इट। गुड जॉब गर्ल्स। चलो आते हैं। देखो यार, ये सब पिक्चर्स नहीं आती हैं, ठीक है, तो इनको इग्नोर मान लो, ठीक है? ये फालतू वाले पिक्चर्स हैं, ठीक। अब दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर विच पिक्चर, न्यूट्रल पिक्चर, राइट? फिर से आपकी ये न्यूट्रल पिक्चर आ गई। अगेन दिस इज योर न्यूट्रल पिक्चर। अब फिर से सिंस यू आर अ फीमेल, तो आप किसको लोगे अपना मेन कैरेक्टर? दिस फीमेल, राइट? ये आपका हो जाएगा मेन कैरेक्टर। अब ये कहाँ का बैकग्राउंड दिख रहा है आपको? क्या इसके घर का बैकग्राउंड है ये, है ना? दरवाजे पे खड़ी हुई है फीमेल, इसके घर का बैकग्राउंड है। गॉट, ओके। अब इससे आपको क्या थीम समझ आ रहा है? अब देखो, सिंपल डिस्कशन हो रहा है किसी चीज पे, है ना? तो क्या आप कभी ऐसे जाते हो, कोई आपके घर में आता है, हाँ, तो आप जाते हो, राइट? उनसे बात वगैरह करते हो। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? आप कुछ बता सकते हो कि ये कौन हो सकते हैं? नेबर्स। नेबर्स, व्हाट एल्स? या फिर कोई रिलेटिव। रिलेटिव हो सकते हैं, यस। या फिर मैम एज वी हो कैन सी सकते कि हैं, वो गेट पे, तो इट कुड बी लाइक न्यूली शिफ्टेड नेबर जो हमारे फ्रंट में रहने आए हैं, यस यू कैन से तो दैट। उनको कुछ एक्नॉलेज करना। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप वो कुछ ऑफिस वगैरह का सीन नहीं लाओगे, कॉलेज वगैरह का, स्कूल वगैरह को कोई सीन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका घर का सीन बनेगा, राइट? ये आपका पूरा घर का सीन, ठीक है? ये आपका होम है। अब यू कैन कंसीडर देम एज योर फ्रेंड्स, ठीक है? आपका ये फ्रेंड भी हो सकता है। आपका नेटवर्क बार बार लैग हो रहा है एक्चुअली, आपकी वॉइस और वीडियो पॉज हो रही है बीच बीच में। ओके, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है क्या? लेट मी चेक। अभी ठीक है? ओके चलो। तो ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और आपके क्या हो सकते हैं ये? अब देखो, सिंस इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, कुछ पेपर्स वगैरह नहीं है, तो यू कैन नॉट से कि ये कहीं से आए हुए हैं सेंसस वगैरह के लिए, ठीक है? अगर आप वो बताओगे उसमें, तो बहुत ही लॉजिकल हो जाएगा, राइट? ये एकदम ही लॉजिकल हो जाएगा कि अगर कोई बंदा सेंसस वगैरह के लिए आ रहा है भाई, इवन अगर सेंसस नहीं तो कभी कभार बोलते हैं लोग कि चलो पोलियो वगैरह की वैक्सीनेशन वगैरह के लिए पूछने आते हैं लोग, है ना? तब भी उनके हाथ में कुछ चीजें होती हैं, राइट? उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, नोटबुक्स वगैरह सब होती हैं, जस्ट टू राइट ऑल द थिंग्स, है ना?
तो अगर आप ये थीम उसमें बनाओगे तो पूरा इलॉजिकल हो जाएगा केस, राइट? तो क्या बना सकते हो बेसिकली, अब यहाँ पे आपको सोशलाइजेशन दिखानी है अपनी, है ना? भर भर के अपनी सोशलाइजेशन यहाँ पे दिखाइए कि अगर आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, है ना? मान लो कि फ्रेंड ही आया हुआ है मिलने, तो आप क्या क्या चीजें करोगे? आपके नेबर्स आए हुए हैं, न्यूली शिफ्ट नेबर्स हैं, ठीक है? तो आप उनकी हेल्प करोगे जाके उनके घर में फॉर शिफ्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग, राइट? फिर अगर मान के चलो कि अगर ये सच में सिनारियो होता है कि आपके घर में, आपके बगल में कुछ नए नेबर्स आते हैं, इफ यू आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ फ्लैट एंड ऑल, ठीक है? तो अगर आपके घर में अगर बगल में आपके नेबर्स वगैरह आते हैं, तो व्हाट ऑल डू यू डू? आप उनको मतलब, क्योंकि अब यार देखो सेटल होने में टाइम लगता है, राइट? तो आप उनको खाना वगैरह बना के दे सकते हो एक दिन का, सुबह का, शाम का, एक टाइम का खाना आप उनको दे सकते हो, राइट? बाकी उनकी शिफ्टिंग वगैरह में हेल्प कर दो। अब सोसाइटी वगैरह में अगर आप रह रहे हो तो यू कैन हेल्प देम विद द, यू नो, सोसाइटी का जो भी हेड वगैरह है उनसे उनका नंबर वगैरह शेयर कर सकते हो आप, राइट? है ना? इवन अगर उनको फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसकी जरूरत होती है कभी कभार, सिंस यू आर लिविंग इन फ्लैट्स एंड ऑल, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाउस हेल्प वगैरह की जरूरत होती है, राइट? सो कैन शेयर द नंबर ऑफ दैट ऑल्सो, अपने हाउस हेल्प की वगैरह का भी नंबर आप बता मैम सकते आपकी वॉइस मैम वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। हो। अभी ठीक है? बताना यार, लेट मी चेंज द नेटवर्क। अभी ठीक है? ऑल गुड? यस। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हाँ सही है, ठीक है। इवन यू कैन टेल देम अबाउट द डायरेक्शंस कि यहाँ से मार्केट वगैरह कितना दूर है एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर माइक्रो एक्शन पार्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़े? Okay. Yes. Now comes to this picture. A very good picture. Okay. सिर्फ एक कैरेक्टर, यही लेडी आपकी मेन कैरेक्टर होगी, एंड दिस इज द मिरर, राइट? अब घर का सीन है, ठीक है? ये मिरर में अपने आप को देख रही है, शी सीइंग हरसेल्फ इन द मिरर। गॉट इट? अटायर देखो इसका थोड़ा सा, अटायर पे ध्यान दो, क्या पहन रखा है इसने? साड़ी, राइट? इट्स अ साड़ी। साड़ी पहन के लोग कहाँ जाते हैं? एंड सिंस यू नो साड़ी भी पहना हुआ है, स्टिल फंक्शन में नहीं जा रही, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह ज्यादा कुछ नहीं पहना इसने, है ना? दैट इज समथिंग यू हैव टू नोटिस। ज्वेलरी वगैरह नहीं है, इट इज वेरी मिनिमल, राइट? बहुत ही मिनिमल सा साड़ी इसमें पहना हुआ है, अपने आप को उसमें देख रही है, मिरर में देख रही है, ठीक है? व्हाट कैन यू थिंक ऑफ कि कहाँ जा सकती है? किसी इवेंट में, जॉब, इवेंट हो सकता है, ऑफिस जा रही है, ऑफिस जा रही है, इवेंट हो सकता है, स्कूल इवन ऑफिस फेयरवेल में भी, पार्टी, स्कूल जा रही ऑफिस है। में भी कुछ इवेंट हो सकता है, राइट? है ना? हाँ फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल, या फिर कॉन्वोकेशन। मैम इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा हो कॉन्वोकेशन। और उसका वो जो नहीं होते हैं उसने कपड़े बनाए हो उसका इवेंट हो। करेक्ट। यस। तो फैशन डिजाइनिंग में भी यू कैन इंक्लूड निफ्ट वाला, निफ्ट का सीन आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है? राइट? यस। अब बनाओगे क्या? हाउ विल यू ऐड माइक्रो एक्शंस टू दिस पिक्चर? कैसे माइक्रो एक्शंस ऐड करोगे? फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से कि इवेंट हो रहा है, ठीक है? ऑफिस का कुछ इवेंट है, हो सकता है कि किसी की रिटायरमेंट पार्टी हो, है ना? फॉर दैट शी इज गोइंग एंड ऑल। और क्या हो सकता है? कोई सक्सेस पार्टी हो आपके बिग प्रोजेक्ट की, है ना? दैट कैन बी ऑल्सो एक सक्सेस पार्टी हो सकती है आपके किसी बिग प्रोजेक्ट की। क्या हो रहा है? यस। तो आप क्या क्या करोगे आप इसमें? एनीवन हु कैन गिव मी द माइक्रो एक्शंस फॉर दिस? सबसे पहले वी विल डिस्कस विद आवर टीम एंड फाइनलाइज डेट टाइम वेन्यू, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंकरिंग के लिए खुद इनिशिएट कर लेंगे, स्क्रिप्ट वगैरह प्रिपेयर करेंगे, मिरर प्रैक्टिस करेंगे, यस। एक्सप्रेशन चेक करेंगे एंड फीडबैक्स फ्रॉम द सीनियर्स, एंड ऑन द डे ऑफ द इवेंट कंडक्ट कराएंगे। जो आपका जो कंडक्शन होता है पूरा इवेंट का, उसको आप ना छोटे छोटे कार्ड्स में आप नो कि कैसे कैसे आगे बढ़ना, यू कैन डिवाइड दैट इन डिफरेंट छोटे छोटे कार्ड्स, जैसे आप देखते हो ना टीवी पे वो लोग कार्ड्स लेके रखते हैं, ठीक है? यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो, राइट? और क्या कर सकते हो? चीफ गेस्ट वगैरह का थोड़ा सा ऐड कर दो उसमें, है ना? चीफ बुके गेस्ट, वगैरह, फ्लावर्स। हाँ बुके वगैरह आपका हो गया,
अगर डिनर भी इंक्लूडेड है तो डिनर का भी हो जाएगा पूरा सॉर्टेड, ठीक है। यू विल नो, आप किसी ना किसी को वॉलंटियर दोगे कि हाँ आप वॉलंटियर करो, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं करना, इसमें भी आपको अपना सोशलाइजेशन दिखाना पड़ेगा, राइट। अगर आप सब कुछ खुद ही कर लोगे तो फिर दिखाएगा कि ये तो पूरा खुद ही कर लेता है यार, ठीक है। यू हैव टू नो, अपना OLQ लाओ, यहाँ पे अपने OLQs भर भर के डालो, सोशलाइजेशन का OLQ जितना ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो ज्यादातर कैंडिडेट्स होंगे ना, वो अगर इस पिक्चर में क्या बनाएंगे, इंटरव्यू की प्रेप करने गई, इंटरव्यू की प्रेप करा उसने, ये बहुत पुराने थीम्स हैं, बहुत बेसिक थीम्स हैं। इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन TAT, तो ये सब नहीं बनाना, ठीक है। अवॉइड सेल्फ सेंट्रिक स्टोरीज एज मच एज पॉसिबल, गॉट। सेल्फ सेंट्रिक जितना कम हो सकते हो उतना कम हो, ठीक है। समझ में आया? सॉर्टेड, दिस थीम इज ऑल्सो सॉर्टेड। आगे बढ़े। अच्छा हाँ, अगर हम इसको फैशन डिजाइनिंग वाला थीम लेते हैं, इफ यू गो विद दिस फैशन डिजाइनिंग थीम, यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग वाला लेते हैं, तब यहाँ पे क्या लाओगे आप? Procurement of material, finalizing designs, approval of design, then अच्छा, ऑफिस वाले सीन में व्हाट डेजिग्नेशन, आपने क्या डेजिग्नेशन उसको दिया था? अब देखो, यू कैन मेक हर अ जूनियर मैनेजर, ठीक है। मैनेजर नहीं बनाना, सीनियर मैनेजर नहीं बनाना, जूनियर मैनेजर बनाना, ठीक है। एकदम हाई वो भी नहीं लेनी, डेजिग्नेशन भी नहीं लेनी आपको, ठीक है। और क्या बना सकते हो? HR भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है। HR भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अदरवाइज और क्या बना सकते हो आप? इफ समवन इज इन द कॉर्पोरेट, तो आप बताओ थोड़ा, क्योंकि आई एम नॉट इन द कॉर्पोरेट, सो आई डोंट एग्जीक्यूटिव नो लेवल अबाउट ऑल पे, दिस थिंग्स। हाँ, क्या क्या कर एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो बना सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता है, राइट। और सेल्स एग्जीक्यूटिव, एनीथिंग एल्स? HR हो गया आपका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। और जूनियर मैनेजर यू कैन से। गॉट इट। अब फॉर दिस फैशन डिजाइनिंग वाला थीम, व्हाट कैन यू मेक? क्या डेजिग्नेशन दे सकते हो अपने मेन कैरेक्टर फॉर दिस थिंग, फैशन डिजाइनिंग वाले पे? फाइनल ईयर निफ्ट भोपाल स्टूडेंट। या फिर ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और प्रोजेक्ट के लिए उसका कर सकते हैं। डिजाइनिंग अगर क्लब हम की इसको, हेड है। हाँ डिजाइनिंग क्लब की हेड है या फाइनल ईयर स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर जब ये वाली डेजिग्नेशंस लोगे ना आप, तो इसमें आप उससे से ज्यादा काम करवा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जितनी हाई डेजिग्नेशन लोगे आप, मान लो HOD ले लिया, HOD से आप काम नहीं करवा सकते उतना, राइट, है ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि डेजिग्नेशन हमें वैसी ही लेनी है जिसमें हम उसको ग्राउंड जीरो पे उतार के काम करवा सकें। गॉट इट? यस, कूल। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये आ जाती है आपकी थोड़ी फैमिली वाली बुक्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नेटवर्क ठीक है ना अभी मेरा? कोई इशू तो नहीं है अभी? no नहीं ma'am. नहीं अभी नहीं है। ओके, गुड। ओके, अब बताओ, इसमें 4 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं अच्छे से, 4 कैरेक्टर्स आर सॉर्टेड इन दिस पिक्चर, है ना। अब ये 2 मुझे बच्चे दिख रहे हैं, दिस वन इज अ मैन, ये एक आदमी है, एंड दिस इज अ लेडी, राइट, है ना। अच्छा, अब ये आपकी एक फैमिली वाली पिक्चर आ गई है। फैमिली पिक्चर में आप अपना ऑफिस तो नहीं लाओगे, है ना। यू कैन नॉट ब्रिंग योर ऑफिस इन फैमिली पिक्चर। क्या ला सकते हो? बच्चों का स्कूल ला सकते हो एंड ऑल, है ना, कि बच्चों का कोई कंपटीशन वगैरह है, हाउ डू यू हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग फॉर दैट? यस। या फिर बच्चों का क्या हो सकता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह हो सकता है, यू कैन हेल्प देम इन दैट। और क्या कर सकते हैं इसमें? काइंड ऑफ सॉर्ट करियर ऑफ काउंसलिंग, आगे क्या करना है 10th के बाद? करियर काउंसलिंग, राइट, होता है। मतलब 10th के बाद डिस्कशन करते हैं ना हम, आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह, कंपटीशन वगैरह एक्स्ट्रा उसका करिकुलर्स क्या कराने हैं अच्छा चिल्ड्रन हाँ, को, उस वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कोई ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हो इसमें, कि फैमिली है ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं, राइट। Yes ma'am. किसी फेस्टिवल की भी प्लानिंग कर सकते हैं। फेस्टिवल की भी प्लानिंग हो सकती है, करेक्ट। और कुछ
ट्रिप समर वेकेशंस में एक्स्ट्रा क्या मतलब एक्स्ट्रा को करिकुलर क्या सीख समर सकते हैं बच्चे? वेकेशंस पे एक्स्ट्रा को करिकुलर्स डेवलप करने के लिए थोड़ा, फॉर एग्जांपल बच्चों को स्विमिंग के लिए भेज सकते हैं, राइट? और सिंस समर्स हैं तो और क्या क्या एक्टिविटीज आप करवा सकते हैं? डिबेट या स्पीच की प्रेप, ओके, चलेगा। वो आपके कंपटीशन में यू कैन ऐड, ठीक है? कंपटीशन आपका एक सब टॉपिक हो जाएगा, सब टॉपिक्स में आपके पूरे आ जाएंगे, ठीक है? कि व्हाट कंपटीशन यू हैव टू ऐड इन दिस, राइट? ओके, आगे बढ़े, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्या घर में कोई फंक्शन हो सकता है? क्या आप इसके सिबलिंग का कोई बर्थडे वगैरह उसकी प्लानिंग कर सकते हैं हम? कि इसका बर्थडे है, उसकी हम पूरी प्लानिंग वगैरह करें, या फिर बच्चों के साथ मिलके फादर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, राइट? ओके, ठीक है। दिस थीम इज आल्सो सॉर्टेड, ग्रेट। Yes, ma'am. ओके, वहां वर्तिका पूछो। मैम तो इसमें बेसिकली ये लिखेंगे ना कि कैसे ऑर्गेनाइज किया, मतलब प्लानिंग वाला प्लानिंग लिखेंगे पूरा प्लानिंग एंड फैमिली ऑर्गेनाइजिंग। के साथ, राइट? देखो यार, आपकी जो मोस्टली जो टीएटी पिक्चर्स होती है ना, उसमें आपका मोटा मोटा जो मेजर पार्ट होता है ना, वो पूरा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? अब उस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको अकेले कर रहे हो, इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स कलीग्स, ठीक है, उनकी हेल्प लेके आप कर रहे हो, तो जितना हो सके इंक्लूड सोशलाइजेशन इन दैट, राइट? जितना हो सके। मैम यहाँ पे हीरो को मदर बनाएंगे, हाँ हीरो को मदर बना सकते हो आप, ठीक है, चलेगा। मैम क्या हम यहाँ पे पोस्टिंग वाली स्टोरी कर सकते हैं कि फादर की पोस्टिंग आ गई है इसके रिगार्डिंग? फादर की पोस्टिंग आ गई है तो हाउ यू कैन हेल्प देम इन शिफ्टिंग एंड ऑल, है ना? उसका भी कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड विद दिस। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इसमें आप किसको मेन कैरेक्टर लोगे, दिस लेडी और दिस लेडी? अब मुझे तो ये फर्स्ट वन। Ma'am, you left one. ओके, अच्छा पहले मुझे बैकग्राउंड बताओ कि बैकग्राउंड आपको घर का डाइनिंग टेबल नहीं लग रहा? पीछे वो मॉड्यूलर किचन वाला सीन है पीछे, राइट? थोड़ा थोड़ा सा ये कहीं की वो, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऑफिस का सीन वगैरह है कुछ, राइट? क्योंकि पीछे तो मुझे ये चिमनी वगैरह थोड़ा सा लग रही है, और पीछे ये मॉड्यूलर किचन का सीन लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं? जस्ट गिव मी अ हॉस्टल की थम्स अप। मेस भी तो हो सकती है मैम। हाँ, हॉस्टल की मेस हो सकती है, राइट, चलेगा, ठीक, हॉस्टल का मेस ले सकते हो इसमें, ठीक, right। और कुछ जो आप ऐड करना चाहो? बस, ओके। अब अगर ये घर का सीन है, अगर घर का सीन है, तो आप इन दोनों में से किसको लोगे मेन कैरेक्टर? The दिस girl in कैन the middle. दिस कैन बी योर मदर, राइट? ये मदर हो सकते Yes. हैं, ये फादर हो सकते हैं, अगर ये घर का सीन है, तो गर्ल इन द मिडल कैन बी योर मेन कैरेक्टर। अदरवाइज अगर आप इसको मेन कैरेक्टर बनाते हो, अच्छा ये भी हो सकता है कि दीज आर सिबलिंग्स, क्योंकि इसकी ज्यादा एज तो लग नहीं रही, ठीक है, कि ये इसकी इतनी बड़ी लड़की की मॉम है ना? तो यू कैन टेक देम एज सिबलिंग्स एज वेल, है ना? अब इसमें भी कुछ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, सेम वही पिक्चर, सेम ये वाले पिक्चर का जाएगा इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा, ठीक है, जो आप करवा सकते हो इसमें। क्या करवा मदर सकते की हैं? Ma'am, बर्थडे की since प्लानिंग। yeah, mother is absent, तो mother का यस, मैम जैसे घर का सीन है तो रेनोवेशन वगैरह चलेगा कि सिबलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं कि किसके रूम में क्या, घर में कहाँ पे क्या लगना है? रेनोवेशन का सीन इज गुड है, रेनोवेशन चलेगा। और क्या बना सकते हैं? सिस्टर की हेल्प की फॉर मतलब हॉस्टल में शिफ्टिंग वगैरह के लिए और सिस्टर की हायर हेल्प की स्टडीज। हॉस्टल वगैरह में शिफ्टिंग के लिए, ग्रेट। और बताइए, एनीथिंग एल्स? अच्छा, अगर हम इसको हॉस्टल का सीन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी किसने कहा था कि हॉस्टल की मेस का सीन हो सकता है, राइट? ये है ना? तो अगर हम इसका सीन ले रहे हैं, तो क्या ये कोई वर्कर हो सकता है जो मेस में काम करता है ना? हम ये उसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, एंड दीज कैन बी कलीग्स, ठीक है, ये हमारी कलीग्स हो जाएंगी।
यू कैन टेक देम एज कलीग्स। तो इसमें अब आप मेस में कैसे इम्प्रूवमेंट कराओगे चीजों में, है ना, कि जो खाना है वो सही तरह से लाइक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है, ये आप करवा सकते हो। मेस की कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस, फूड इंस्पेक्शन वगैरह करवा सकते हो, राइट? कैन डू दैट, चलेगा अच्छा सा। इसमें वो जो खाना गर्म करने के लिए जो हीटर्स वगैरह आते हैं ना, वो ऐड करवा सकते इंस्टॉलेशन ऑफ हीटर्स एंड ऑल, ठीक है। हाँ। मैम अगर इन्हें वर्किंग मतलब वर्कर बनाते हैं हम, तो वो तो हमारे चेयर पे हाथ नहीं रख सकते, मतलब ऐसे फॉर्मली दे डजंट राइट। मतलब ऐसा नहीं होता, दे कैन कीप इट, मतलब आप उसको इतना फॉर्मल भी मत लीजिए ना उस तरह, अच्छा ओके ठीक है। फाइन। Got it? Okay, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैम सॉर्टेड। इसमें if we can see the background is mostly of the kitchen और dining है, तो उसमें हम associate कर सकते हैं the theme like they are starting of thinking a kitchen sorry cloud kitchen an online यस platform. डेफिनेटली यू कैन से कि क्लाउड किचन का कुछ स्टार्टिंग वगैरह करवा सकते हो, स्टार्टअप, है ना। इवन अगर किचन दिख रहा है तो किचन का भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवा सकते हो। अगर किचन का स्पेसिफिकली कुछ रिपेयरिंग करवाओगे तो वो ज्यादा पिक्चर में आप रहोगे, है ना, ज्यादा देर तक Yeah. पिक्चर में रहोगे। अगर आप किचन का कुछ रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन वगैरह करवाओ तो उसमें ज्यादा देर तक आप किचन में रहोगे। और हो सकता है अगर आप किचन की रिपेयरिंग करवा रहे हो तो व्हाट आर द न्यू टूल्स एंड गैजेट्स दैट यू कैन इंस्टॉल इन योर किचन, क्या क्या नए गैजेट्स आ रहे हैं अभी, कुछ मतलब दिमाग में आ रहा है अभी कि अभी क्या क्या कुछ रीसेंट गैजेट्स जो आप किचन में लगवा सकते हो। देखो ये तो चिमनी तो लग नहीं रही वैसे मुझे, कि चिमनी ऐसी होती नहीं, अगर होता तो ये थोड़ा सा नीचे ऐसे होता, राइट ना। तो यू कैन इंस्टॉल अ चिमनी इन दैट हियर, इस जगह पे आप चिमनी इंस्टॉल करवा सकते हो ना, डिश वॉशर वगैरह आप इंस्टॉल करवा सकते हो, राइट। एक होता है कि एक अभी जैसे आ रहे हैं तो वो ना इनबिल्ड इंडक्शन होते हैं, अभी वो फॉरेन लाइक जो बाहर की कंट्रीज है ना, वहां पे काफी चल रहा है कि वहां पे यूजुअली है। इवन यू कैन से कि आपकी गैस पाइपलाइन भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलेंडर्स एंड ऑल, ठीक है, गैस पाइपलाइन का आपने इंस्टॉलेशन वगैरह करवा दिया है, ठीक है। Yes ma'am. गॉट इट, आगे बढ़े। Yes ma'am. तो अभी आपको ये समझ में आया कि द मोर, एक मिनट लेट मी कम, यस, कोई बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही मेरे, नहीं, ठीक है, ओके। तो अभी आपने ये देखा क्या, जितना माइन्यूटली पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे उतने अच्छे अच्छे थीम्स निकल के आएंगे, राइट। बैकग्राउंड, पिक्चर का बैकग्राउंड देखो, अटायर देखो लोगों का, एज देखो उनकी कि क्या आ रही है एज, ठीक है। तो जब आप घर से ही ये चीजें प्रैक्टिस करके जाओगे तो द मोमेंट यू विल सी द टीएटी पिक्चर्स वहां पे वैसे ही हिट करेगा आपके दिमाग पे, ठीक है। और सिंस यहाँ पे आप ऑलरेडी इतने सारे नो इतनी सारी थीम्स प्रिपेयर करके जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो ट्राई करना कि थीम्स को रट के मत जाओ, ठीक है, रटो मत कभी भी, जो वहां पे आपको उस मोमेंट पे थीम आए वही लिखना वहां पे, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी कि यहाँ पे जो आप थीम्स करके जा रहे होगे फीमेल स्पेसिफिक थीम्स, वहां पे जब आएगी ना तो यू विल हिट कि हाँ ये तो क्लास में किया था हमने, इसी पे बना देते हैं, ठीक है। गॉट इट, ग्रेट। ओके, अब बताइए इस पे क्या बना सकते हैं। अब पहले ये बताओ, यू सी अ लेडी हियर, राइट, लेडी को मेन कैरेक्टर लेंगे, है ना। अब मेन कैरेक्टर ले रहे हैं अगर हम, तो क्या करवा सकते हैं, क्या पुलिस स्टेशन, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हम पुलिस स्टेशन सिर्फ कंप्लेंट वगैरह करने के लिए जाते हैं, किसी और काम के लिए नहीं जाते। अच्छा, दैट इज ऑल्सो गुड। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप कंप्लेंट करने जाते भी हो तो वहां पे जो आपका कंप्लेंट होता है वो कौन लिखता है, इज इट द कांस्टेबल और इज इट द इंस्पेक्टर जो वहां पे लिखता है कंप्लेंट, राइट। कांस्टेबल।
कांस्टेबल लिखता है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपको आईपीएस लेवल का नहीं लग रहा इंसान? राइट? ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये कोई कांस्टेबल नहीं है, राइट? नो कांस्टेबल, नो इंस्पेक्टर, ये आईपीएस लेवल का बंदा है। आप आईपीएस लेवल के बंदे के पास क्या आप वो लिखवाने जाओगे, कंप्लेंट लिखवाने? नहीं ना, डेफिनेटली नॉट। तो आप क्या किसी चीज की परमिशन लेने जा सकते हो इनसे कि कोई हम कम्युनिटी वर्क या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते हैं? इनविटेशन एज अ गेस्ट इन कॉलेज एंड स्कूल, यार देखो, इनविटेशन आप करवाओगे अगर, तो इनविटेशन में इनका क्या रोल रह जाएगा कि आप जाओगे, इनवाइट करोगे, दैट्स ऑल, राइट? उससे आगे ज्यादा क्या होगा इनका? राग नहीं होगा कुछ ना। मैम हम अपने कॉलेज में जो पुलिस वाले करते हैं ना रोड सेफ्टी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज, वो भी करा सकते हैं। आपके सिटी में ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चल रही है, ठीक है? ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चल रहा है। सो अब आप इफ यू वांट टू नो कि अगर आपको रैली वगैरह निकालनी है, ठीक है, अबाउट दिस सेफ्टी एंड ऑल, की ट्रैफिक रूल सेफ्टी वगैरह के लिए, सो आप अगर रोड पे आना चाहते हो तो ऐसे नहीं आ सकते, यू नीड परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, राइट? सो सबसे पहले आप क्या करोगे और क्या बनाओगे? अगर आप इसको कॉलेज ले रहे हो तो कॉलेज में आप क्या बनाओगे इसको? यू कैन मेक हर अ प्रोफेसर, ठीक है? या फिर इफ यू आर एन एनसीसी, अगर एनसीसी से हो तो आप इसको एनो बना सकते हो अपने, ठीक है, कि आप इनको एनो बना दो, ठीक है? तो एनो बन के ये जाती हैं एंड परमिशन वगैरह लेती हैं, देन एवरीथिंग एल्स गेट स्टार्टेड। इवन इनसे ये रिक्वेस्ट भी करती हैं कि ये भी अपने कुछ पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह हमारे साथ उस रैली में भेजें, ठीक है, सो दैट उनका भी कंट्रीब्यूशन हो पाए। गॉट इट? उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा, तो हमारे पुलिस वाले भी हमारी स्टोरी में अच्छे से आ जाएंगे, राइट? है ना? और क्या हो सकता है? अगर आप इनको कॉलेज का बना रहे हो तब ठीक है, एनसीसी का बना रहे हो, एएनओ बना सकते हो, ठीक है? अब यू कैन नॉट मेक हर अ कैडेट, कि देखो इसने साड़ी पहन रखी है ना, सो आप इसको कैडेट नहीं बना सकते इस केस में, इसको आप एएनओ बनाओगे। अच्छा हाँ, सेम पिक्चर आती है, सेम पिक्चर मेरे में भी आई थी, ठीक है, टीएटी में। उसमें ये बंदी ने साड़ी नहीं पहना हुआ था, उसमें शी वॉज वेयरिंग अ काइंड ऑफ सूट। तो इन दैट केस यू कैन मेक हर अ कैडेट, राइट? उस केस में यू कैन मेक हर अ कैडेट, लेकिन साड़ी में यू कैन मेक हर अ कैडेट, ठीक है? अच्छा, कॉलेज का सीन हो गया आपका, तो एएनओ बना सकते हो, अदरवाइज अ नॉर्मल प्रोफेसर, ठीक है? ओके, अच्छा और मैम क्या? हाँ स्वाति बताइए। जस्ट अ क्वेरी, मतलब जस्ट दिमाग में आया, अगर ये इनकी स्माइलिंग फेस होती तो कैन दे बी हिज पेरेंट्स, लाइक उसका फर्स्ट डे और समथिंग ऐसा कुछ? वो फिर वो बहुत ही कॉमन थिंग हो जाएगा यार, है? ओके, ऐसा लोग ठीक है। बनाते हैं, बहुत बनाते हैं कि उनका फर्स्ट डे है, बट स्टिल इफ अगर ये इनका फर्स्ट डे होता, लेकिन हम्म, यू कैन सी कि इनकी काफी एज है, राइट? एज लेवल के या साथ भी, और हाँ, इनके स्टार्स भी देखो, है ना? ठीक है, फाइन, तो ठीक ही है, इज ऑन अ प्रमोटेड रैंक, काफी उस पे हाई ओके, रैंक पे है, राइट? यस, ठीक है। ओके। अदरवाइज अगर कॉलेज का नहीं दिमाग में आ रहा है, आपको एनसीसी नहीं किया हुआ आपने, तब आप क्या बना सकते हो? यू कैन मेक देम एज एन एनजीओ, एनजीओ के कुछ वर्कर्स हो सकते हैं ये, ठीक है? एनजीओ भी वॉलंटियर वगैरह करते हैं उसमें। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़े। मैम आपकी वॉइस पहले काफी सही आ रही थी, अब थोड़ी वॉल्यूम कम हो गया आपकी वॉइस का। ऐसा हुआ है क्या? हाँ मतलब आ रही है बट वॉल्यूम कम हो गया है। ओके, अभी ठीक है? नहीं, अब फिर से वैसे ही है? अच्छा, लेट मी गेट माय ईयरफोन्स, ठीक, आई विल जस्ट बैक। अभी ठीक है? ऑल गुड, बढ़िया, अब तो एकदम साफ आ रही होगी। मैम इस हाँ, पे हम ये स्टोरी बना सकते हैं कि हम इनवाइट करें एज ए चीफ गेस्ट फॉर सेमिनार डिजिटल अरेस्ट को।
देखो यार, अगर आप उनको इनवाइट करने आओगे सिर्फ, तो आप ज़्यादा पिक्चर में नहीं रह पाओगे फिर, राइट? सिर्फ आपने इनवाइट किया, आप चले गए, दैट्स ऑल। आपका रोल सिर्फ उसी में आएगा पिक्चर में, राइट? लेकिन अगर आप इनको इसमें इन्वॉल्व करोगे ना, ट्रैफिक वगैरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह में, तब इनका रोल ज़्यादा आएगा फिर, है ना, उसमें, राइट? ओके मैम। यस। ओके, यस, वेरी सिंपल पिक्चर, वेरी गुड पिक्चर, है ना? क्या ये आपको किसी बैंक वगैरह का सीन लग रहा है? बैंक का हो सकता है, या फिर रेलवे वेल में जैसे बैठते हैं, है ना? और भी ऑफिसेज वगैरह होते हैं जहाँ पे ऐसे बैठते हैं, ऐसे काउंटर्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस हो सकता है, राइट? और क्या हो सकता है ये? हॉस्पिटल। और जो मैम सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ का ये होता है। यस, हॉस्पिटल हो गया। और हॉस्पिटल हो गया। और कुछ जो दिमाग में आ रहा हो इस टाइम पे कि ऐसा कहाँ पे देखा है? इवन रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया आपका, रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया। इवन कॉलेजेस वगैरह में भी तो ऐसा होता है, राइट? रिसेप्शन वगैरह पे, है ना? कॉलेज, स्कूल। ओके, ग्रेट। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, कैन यू डू सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट? यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं? अब देखो, थिंग इज सिंपल कि ये आपका जो मेन कैरेक्टर होगा, दिस इज़ योर दिस लेयर, है ना? दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेन कैरेक्टर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको कॉलेज या स्कूल का बना रहे हो, तो यू विल मेक हर एज अ रिसेप्शनिस्ट, ओके, है ना? अदरवाइज और क्या बना सकते हो? अगर बैंक में है तो मैनेजर तो नहीं बनाओगे, है ना? मैनेजर नहीं बनाओगे क्योंकि मैनेजर ऐसे बैठता भी नहीं है, राइट? क्या बना सकते हो? बैंक की पोस्ट क्लर्क बना सकते हैं। क्लर्क, यू कैन मेक हर अ क्लर्क और हेड क्लर्क, है ना? और बताइए, रेलवे में है तो आप क्या बना सकते हैं इसमें? सेम क्लर्क। क्लर्क वाला आपका हर जगह चल जाएगा, ठीक है? वो आपका बैंक में भी आ जाएगा, रेलवे में भी आ जाएगा, आपको पोस्ट ऑफिस में भी आ जाएगा, है ना? मैम, हाँ, लाइक आयुष सर ने सिखाया था कि नॉट टू लो नॉट टू हाई, तो कैन शी बी प्रोबेशनरी ऑफिसर और समथिंग, मतलब जस्ट द स्टार्टिंग? प्रोबेशनरी ऑफिसर्स भी तो मैनेजर ही बनते हैं, राइट? आगे जाके। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में तो वो पीओ होते हैं ना? ठीक है, चलेगा, पीओ बना सकते हो आप, बट आपको फिर उस पर मैंशन करना पड़ेगा दैट शी इज़ अ न्यूली ज्वाइन पीओ, अंडरस्टूड। मेंशन दैट। ओके, इवन क्लर्क भी आपका बहुत लो नहीं है, इट इज़ ऑफ अ मीडियम उस पर, राइट? ओके, ठीक है। अब आपको भी डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू मेक अ पीओ, आप पीओ बना सकते हो। अगर क्लर्क बनाना है, हेड क्लर्क बनाना है, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बिकॉज दीज आर रेस्पेक्टेबल जॉब्स, ठीक है? ओके, अब मुझे ओके बताओ, मैम। व्हाट डेवलपमेंट कैन यू डू हियर? व्हाट इम्प्रूवमेंट कैन यू डू? अगर आप अपने जॉब स्पेसिफिक से बात करो कि आपका अगर जॉब है ऐसा, ठीक है, तो आप इसमें क्या थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन करवा सकते हो? करवा सकते हैं? और क्या करा सकते हो उसमें? एक तो डिजिटलाइजेशन हो गया, दूसरा एनीथिंग एल्स? और इफ़ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन, तो क्या आप वहाँ पे एक एआई मॉडल इंस्टॉल करवा सकते हो जो कस्टमर्स की क्वेरीज़ को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता है? जो छोटे मोटे क्वेरीज़ होते हैं, एक एआई मॉडल आप इंस्टॉल करवा सकते हो। व्हाट एल्स? और क्या करवा सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग को मतलब प्रोत्साहन देना, मैनुअल मोर एंट्रीज। ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग पीपल यूज करे। ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट मोड, राइट? थोड़ा सा वो ज़्यादा यूज़ करें। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस थिंग, यू कैन इवन अवेयर पीपल ऑफ दिस डिजिटल अरेस्ट एंड ऑल, ठीक है? अवेयरनेस भी करवा सकते हो। यू कैन
कि वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगवा दिए कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि देखो जो गांव वगैरह के लोग होते हैं वो उतने अवेयर नहीं होते हैं ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो उनके लिए आप ये सब करवा सकते हो कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट, उससे कैसे बचना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ समथिंग यू कैन मेक, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा इसमें। और क्या हो सकता है? मैनुअल एंट्रीज को डिजिटल ऐप या फिर कार्ड्स में। ओके, मैनुअल एंट्रीज को उसमें कर दिया। और बताइए, बैंक जाते होंगे आप लोग, क्या क्या देखते हैं वहाँ पे, लाइक क्या क्या चीज़ें हो सकता है जो आप डिजिटलाइज करवा सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको लगता है एज अ पर्सन कि हो सकता है बैंक में? फॉर्म्स ऑनलाइन फिल हो सकते हैं। ओके, फॉर्म्स। हाँ, बहुत सारे जैसे अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, कैश विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए भी इवन फॉर्म्स आप होते हैं। जैसे लोग आते हैं जो अभी भी लोग आते हैं जो अपना अकाउंट ओपनिंग वगैरह यहाँ से करवाते हैं, राइट? तो यू कैन इवन आप उनको क्या कर सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको करना, असिस्ट। नहीं असिस्ट तो ठीक है, इवन यू कैन लाइक, वो वर्ड नहीं आ रहा यार दिमाग में मेरे, उनको आप असिस्ट तो ठीक है, असिस्ट यू विल असिस्ट देम, जिनको नहीं पता यू कैन असिस्ट देम कि आप अपना ऑनलाइन ओपनिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू विल ऑल्सो मोटिवेट देम टू यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑल, और इवन उनको थोड़ा सा आप अवेयरनेस भी करवाओगे कि हाउ यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन, ठीक है। इवन अपने डिपॉजिट्स एंड ट्रांजैक्शंस कैसे यू कैन चेक इन दैट थिंग, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। AI चैट बॉक्स इन डिफरेंट, करेक्ट, AI चैट बॉक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स, और कुछ? या फिर मैम ये जो हमारी जो फीमेल मेन कैरेक्टर है वो ये एनालाइज करती है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कस्टमर फेसिंग, और उसके बेसिस पे वो कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है, ऐसा? डोंट मेंशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर तो यही बात हो गई ना कि आपने खुद प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया, खुद उसको सॉल्व करवा दिया, राइट। अदरवाइज इसकी जगह पे यू कैन सिंपली इम्प्रूवमेंट पे आप काम कर सकते हो बैंक की, है ना। अगर डोंट राइट दिस थिंग इन योर TAT कि डोंट स्टार्ट विद दिस कि उसने देखा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, डोंट डू दैट, ठीक है। सिंपली आप चीज़ों को इम्प्रूव करवाओ ना बैंक में, क्यों खुद ही प्रॉब्लम ला के खुद ही उसको सॉल्व करवा दिया, तब तो फिर वो अच्छी TAT नहीं बनेगी ना, यू विल नॉट फेच गुड मार्क्स इन दैट, ठीक है। तो But ma'am, as Can we can see in the ma'am picture, can what is current. वन बाय वन, ma'am can हाँ advise them how to prevent from fraud and errors. हाँ वो तो आपका फिर इसमें आ जाएगा ना, ये डिजिटल अरेस्ट वाले में पूरा, क्या फ्रॉड एंड ऑल, ये Ma'am, पूरा। I have a doubt, but in this picture, as we can see, what is currently happening is there is a person in the front, and he's like the girl is having some listing in her hand. तो उसको कैसे जस्टिफाई करें मैम? वो तो आपने एक मतलब बहुत ही जेनरिक बता दिया कि वो मतलब अपस्किल करा रही है, फिर कुछ चीजें ठीक करवा रही है वहां पे, न्यूली अपॉइंटेड। राइट, तो व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे मैम? वुड यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? so what is currently happening in the picture, she is a PO in the bank, okay, while doing the daily task, while doing the routine task and all in her bank, okay। तो उससे लगा ऐसा कि there are some kind of there is need of improvement on all everything, ठीक है। so that is something that you can write in your what is currently happening in the picture while doing her daily routine task, got it, ऐसे you will Yes, ma'am. continue with your picture, ठीक है, राइट, ओके। अब तो ये हो गया हमारा बैंक वाला सीन। रेलवे स्टेशन पे अगर आप देखो तो उसमें क्या करवा सकते हो, अब ये जो है ये टिकट भी दे रही हो सकती है, राइट, किसी को, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब इन केस ऑफ रेलवे वाले में सेम डिजिटलाइजेशन तो करवाओगे, और क्या करवा सकते हो? बताइए बताइए बताइए। बताइए, रेलवे स्टेशन जाते होंगे ना सभी, नहीं जाते? अगर रेलवे स्टेशन वाला सीन लेते हैं यहाँ पे, तब क्या हो सकता है?
सेम वही डिजिटलाइजेशन तो होगा, लेकिन कैसे होगा? IRCT ऐप। ओके, ऑनलाइन टिकट बुक करना है प्रमोट करके। यस, ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह हो सकता है। व्हाट एल्स? और कुछ? मैम एक्चुअली अभी ना जैसे टिकट काउंटर्स है उसके साथ में वहाँ पे एक मशीन्स भी लगी रहती है, तो वहाँ से खुद अपना टिकट निकाल सकते हैं। कुछ कुछ रेलवे स्टेशन पे नहीं है, ठीक है, सारे स्टेशन पे नहीं है, तो यू कैन मेक श्योर कि आप वहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन्स का इंस्टॉलेशन करवा सकते हो, राइट? ये हो सकता है। जो छोटे मोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे अभी ये नहीं है चीज़ें, है ना, तो वहाँ पे यू कैन इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स, कैन इंस्टॉल दीज थिंग्स। और क्या हो सकता है? मैम मुझे भी ना सेम डाउट आ रहा है जो कि प्रीवियसली पूछा था किसी ने, कि इफ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर, फीमेल कुछ इधर राइट ऑन द पेपर और कुछ तो वो बता रही है एज ये कोई कस्टमर है, तो फिर ये पिक्चर फिर जस्टिफाई नहीं हो रही ना, मतलब फीमेल एज अ मेन हीरो और फीमेल क्या कर रही है? तो यार देखो, अब ये ज़रूरी नहीं कि ना आप हर पिक्चर में उसी पे रहो, है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर पिक्चर में उसी पिक्चर के अराउंड घूमो। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करो कि आपको पिक्चर पे ही रहना है ना। इवन आयुष सर भी यही बताते होंगे, राइट, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पिक्चर पे रहना है, बट कभी कभी ऐसी पिक्चर्स आती हैं जिस पे आप नहीं रह पाओगे पिक्चर में, है ना। अब आप इसमें सिर्फ क्या बताओगे? अगर इसको सिर्फ पेपर में लिखना ही होगा कुछ, तो क्या बताओगे इसमें? कितनी देर वो लिखेगी पिक्चर, मतलब कितनी देर वो लिखेगी उस पर, है ना, ये भी तो है, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, हम बैंक या रेलवे स्टेशन में डिजिटलाइजेशन भी करा रहे हैं, लेकिन उस केस में अगेन वो अपनी सीनियर से बात करेगी, टीम के साथ वो करेगी एंड प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाएगी, वो तो आपका पूरा रोल माइक्रो सेट। एक्शंस में आ गया ना, हाँ है हाँ, ना। बट अगेन हमारी पिक्चर में मैम ये तो आ ही नहीं रहा ना कि इस बंदी ने उस पेपर पे या उस पर्सन से क्यों कांटेक्ट किया या क्या बात करी। वो तो आपका डेली रूटीन टास्क में आ जाएगा ना, वो तो ऐसे नॉर्मल करते ही है ना, तो वो आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल दोगे कि वाइल परफॉर्मिंग हर डेली रूटीन टास्क शी ईदर गॉट अ समथिंग लाइक ऑर्डर फ्रॉम द मैनेजर और ठीक है, या तो मैनेजर से ऑर्डर आया, या फिर शी हरसेल्फ थॉट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो तब वो जाके अगर ऑर्डर आया है तो सीधा सीधा ऑर्डर फॉलो करेगी, राइट। अगर ऑर्डर नहीं है देन शी विल गो टू द मैनेजर, परमिशन वगैरह लेगी, अपना पूरा प्लान जो है स्ट्रक्चर वो उनके सामने बताएंगी, एवरीथिंग, है ना, दैट शी कैन डू, राइट। तो अभी ऐसा हो जाएगा पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। But we can also say like manually, if you verify all documents, it will delay the process. So digitalizing will we can get access to the documents with a single click. हाँ, We even can you can justify. start with this key. She was noticing that most of the people are still using like doing manual transactions and all, है ना. You can start with this also. कि seeing that most of the people were still doing manual transactions, she thought of availing them, or digitalization most of the transactions and all everything, है ना. This you can add, right? चलो भाई आगे बढ़े. एक ये थीम आती है गांव वाला सीन. पीछे आपको फील्ड वगैरह दिख रही है, राइट? दिख रही है फील्ड पीछे? ग्रेट. पीछे आपको फील्ड दिख रही है ना, और ये कुछ कैटल्स दिख रही हैं आपको, कैटल भी हैं, है ना. और ये लेडी दिख रही है, लेडी ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, राइट, काइंड ऑफ बुक्स एंड ऑल. बुक्स हो सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन. अब विलेज का सीन है पीछे, ठीक है, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यहाँ सिटी का सीन है यहाँ इसमें, ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई, राइट. सिंपल सा विलेज का सीन है. ये फील्ड दिख रही हैं आपको, ठीक है. अब फील्ड क्या की जा रही है? प्लगिंग हो रही है, राइट. मतलब अगर प्लगिंग हो रही है तो कुछ सो करने का तैयार हो रहा है यहाँ पे, सोइंग सीजन चालू है, राइट, है ना. अगर फील्ड्स को प्लग किया जा रहा है तो कुछ सोइंग सीजन चालू है. अब आप इसको क्या बना सकते हो? व्हाट डेजिग्नेशन कैन यू गिव हर?
अच्छा ऐसा तो नहीं करोगे इसमें आप कि लाइक कहीं का कोई ऑफिसर वगैरह थी जिसने अचानक से देखा कि लोग ऐसा प्लगिंग वगैरह कर रहे हैं तो जाके उनके पास जाती है और इनको एडवाइस करने लगती है। वेरी लॉजिकल थिंग है ना, ये तो करोगे नहीं। अपने ही घर का सीन लोगे कि हाँ इसी के घर का सीन है ये, राइट, कि हाँ पेरेंट्स वगैरह ऐसा कर रहे थे। देन अब इसको आप अगर एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक बना रहे हैं तो एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक हम क्या बना सकते हैं इसको? क्या हम इसको एक पीएचडी स्कॉलर बना सकते हैं कि शो इज परस्यूइंग अ पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंस? यस। अब उसकी साड़ी पे मत जाना कि ये साड़ी है इसने पहनी हुई है तो ये गांव की लड़की होगी, क्या पीएचडी करेगी। नो, कैन नॉट थिंक ऑफ दैट, ठीक है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आजकल लड़कियां साड़ियाँ पहन के सब कुछ कर रही हैं। गॉट इट? तो यू कैन नॉट से कि ये लड़की है इसने कुछ हाथ में बुक्स वगैरह ले रखी हैं, तो यू कैन डेफिनेटली मेक हर अ पीएचडी स्कॉलर। या फिर आप इसको एमएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बना सकते हो, इवन बीएससी का भी बना सकते हो, नो इशूज़, चलेगा। बट आई वुड से कि एमएससी का बनाओ कि बीच में रहेगा, वर्केबल रहेगा, ठीक है। गॉट इट? अब पीछे सोइंग हो रही है, अब मुझे बताओ व्हाट थीम्स कैन यू इमेजिन है कि ये देखती है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है घर पे, तो अब रीसेंट एक्टिविटीज़ से जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, गांव वाला वो जो पुराना हो गया कि लोग एचवाईवी सीड्स का यूज़ करते हैं, है ना, एचवाईवी सीड्स वगैरह हो गई, इरिगेशन वगैरह हो गया, ये बहुत पुराने थीम्स हैं। डोंट गो विद दीज थिंग्स, इसके साथ जाओगे ज़्यादा मार्क्स फेच नहीं कर पाओगे, ठीक है। एचवाईवी, इरिगेशन, ये सब पुराने थीम्स हो गए। कम अप विद द करंट इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं, करंटली जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं करंटली, बताइए तो। using drones in farming, ड्रोन, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वो सब एक ही में इंक्लूड कर देना, ठीक है। क्लास में जाके किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बताती है पेरेंट्स को, ठीक है, वो आपका एक ही में आ जाएगा। बाकी और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, करेक्ट, वेरी गुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग से करवा सकते हो आप। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन बहुत पुराना है मेरा। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव, ड्रोन वाला करवा सकते हो, यस। और गवर्नमेंट अभी मिलेट्स का प्रमोशन कर रही है, मिलेट्स का करवा सकते हैं हम इधर का। मिलेट फार्मिंग अगर आप करते हो, वो पेरेंट्स से बताती है कि आप मिलेट फार्मिंग करते हो तो उससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा होता है, राइट। मिलेट्स तो मिलते ही हैं, इन रिस्पॉन्स टू दैट आपको सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ता हुआ दिखता है, राइट। यस। और क्या करवा सकते हैं? मिलेट्स का हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनीथिंग एल्स और कुछ दिमाग में आ रहा है? कैश क्रॉप वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं। यस, कैश क्रॉप वगैरह के बारे में बता सकते हो आप। अच्छा, कैटल से रिलेटेड अगर आ गया, कैटल्स को भी इंक्लूड करना है इसमें, तो आप क्या बनाओगे अगर कैटल की स्पेसिफिक बनाना हो तब? उनका वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीनेशन और बायोगैस, बायोगैस रिलेटेड कुछ। एक इनिशिएटिव चला है गोबर्धन, सुना होगा अगर किसी ने, इफ़ यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स, गोबर्धन का इनिशिएटिव चला है, राइट। सो गोबर से यू कैन, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, राइट, सो यू कैन यूज़ द गोबर विच इज़ गिवन बाय द कैटल्स, ठीक है, उसका यूज़ करके यू कैन मेक बायोगैस एंड ऑल एवरीथिंग, तो आपका एक फ्यूल का भी काम करेगा, राइट। यस, सॉर्टेड थीम, अच्छा थीम आ गया। बट मैम ये गोवर्धन वाला तो हमेशा से ही होता आ रहा है गांव में, सबके यहाँ होता है। लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना, मतलब अभी ये गोवर्धन वाला इनिशिएटिव फिर से लॉन्च हुआ है, ठीक है, अभी इसको फिर से अच्छा, प्रमोट किया जा रहा है, तो पहले तो था ही लेकिन ओके। अभी फिर से ही अब हो रहा है, ठीक है। ओके, मैम इसमें जैसे कि एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो फिर वो पेरेंट्स को सिर्फ एडवाइस करेगी, मतलब असिस्ट करेगी ना कि हाउ शी ब्रॉट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट ऑल टू डू इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। असिस्ट भी करेगी, इवन वो ऐसा भी कर सकती है ना कि सीड्स वगैरह ला के दे सकती है उन्हें, ठीक है, क्योंकि उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है, दे डू एवरी प्रैक्टिकल, ठीक है, वो सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, तो ये सीड्स वगैरह भी ला के दे सकती है उनको, है ना। यस,
और ये फार्मर्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए गाइड कर सकती है क्या? उनका जो भी क्रॉप। एक्सपोर्ट वाला ज़्यादा मत प्रमोट करो, ठीक है? मेक इन इंडिया का प्रमोट ज़्यादा करो, एक्सपोर्टेशन वाला मेड इन इंडिया, हाँ हाँ। ठीक है, वो ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है? बाकी ऑल्सो हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर हम लेके चले तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं होगा, ठीक है, कि फर्टिलाइजर वगैरह नहीं यूज़ करना, तो ये उनको वो बता भी सकती है कि इवन शी कैन हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ बताने की जगह हेल्प भी करेगी हमें, राइट? ठीक है। अच्छा हाँ, इवन यू कैन ऐड कि इंस्टेड ऑफ दिस मिलेट्स, सिंस अभी हमारा जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल, राइट? सो उनको इथेनॉल की भी ज़रूरत पड़ रही है, राइट? सो इथेनॉल को लाने के लिए दे कैन प्लांट व्हाट, शुगर केन्स। शुगर केन्स, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो शुगर केन्स अगर वो करेंगे तो उससे इनको भी फ़ायदा होगा, एंड ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, और हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, राइट? यस, सॉर्टेड थी, ग्रेट। अच्छा, ये पिक्चर किसी को लग रहा है कि गाना है एक, उसकी पिक्चर डाल दी है किसी ने, ये यस मैम। क्या क्या पिक्चर्स लाते हैं यार। ऐसे पिक्चर्स नहीं आती मैम, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं दैट दे आर हाँ राइट, सर्कुलेटिंग इन द डिफरेंट चैनल्स। करेक्ट करेक्ट, तो ऐसे नहीं आती, ठीक है? जैसी आ रही हैं आती हैं, वैसी मैं आपको करवा रही हूँ। जो ओके। फालतू वाली पिक्चर्स हैं उनको तो छोड़ना ही है यार, ठीक है? ओके, अब ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है, इसमें आप क्या बना सकते हो? रीयूनियन हो रखा है यहाँ पे, है ना, राइट? बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है कि हाँ भाई बंदी है, अपने दोस्त से मिली है बहुत दिनों बाद, रीयूनियन हुआ है उनका, उसको घर ले जाती है, दे शेयर मेमोरीज एंड ऑल एवरीथिंग। और क्या बना सकते हो उसमें, और क्या हो सकता है? लाइक अगर घर भी लेकर आ रहे हो, इफ़ यू पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ दिस गर्ल, और एंड यू आर मीटिंग योर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तब आप क्या क्या चीज़ें करोगे बताइए? कीप योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ दिस मेन कैरेक्टर, अब बताओ। बताइए बताइए। Old memories के बारे में we'll talk, then we'll connect to other friends and invite them. राइट, तो इनको डिनर पे भी इनवाइट करेगी, है ना? डिनर वगैरह पे इनवाइट किया, या फिर इनवाइट करने के बाद भी फिर डिनर वगैरह का प्रेप वगैरह किया, राइट? वो भी हो गया इनका। और क्या बना सकते हैं? कुछ इनविटेशन, मतलब इनविटेशन कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद इन आवर फ्रेंड सर्कल। विद इन आवर फ्रेंड सर्कल में, अब इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज समथिंग, तो हो सकता है किसी फ्रेंड की कोई बर्थडे पार्टी है, उसको सरप्राइज हाँ। वगैरह देना, राइट? वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। व्हाट एल्स, और कुछ? अच्छा, ये ऐसा भी तो हो सकता है दैट शी इज़, यू नो, ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, और शी इज़, यू नो, अपने भाई को ये भेज रही है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, है ना? तो ये भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है सामान, इफ इन पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि घर में कुछ फंक्शन वगैरह है, ठीक है, तो उस फंक्शन की तैयारी के लिए कुछ सामान लाने भेज सकती है। यस, हाँ। एंड शी इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस ना। हाँ, वर्क का बताओ। मैम बट इसका एक्सप्रेशन तो सरप्राइज्ड वाला लग रहा है, तो सरप्राइज फिर वाला उसे मतलब ऐसे ही मार्केट। कुछ बात कर रही है ये ऐसे करके, राइट, है ना? तो पहला वाला थीम इज़ गुड। अगर उस टाइम पे ऐसा थीम ना आए, तब आप इसके साथ भी जा सकते हो, राइट? कि घर में कुछ फंक्शन एंड ऑल एवरीथिंग। चलो, मैम ये भी हो सकता है कि ब्रदर सिस्टर के लिए बाइसिकल लाया, गिफ्ट किया, बाइसाइकिल। जैसे कि कॉलेज आने के लिए, यू नो, कि उसको आते भी नहीं और राइड करना, तो वो भी सिखाता है उसको, ये सब एक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो, वर्केबल थीम है। मैम अगर बाइसिकल उसको गिफ्ट कर रहा है तो वो वाली होनी चाहिए ना, वो मेरे बीच में लगी हुई ऐसा। हाँ, बाइसाइकिल गिफ्ट कर रहा है तो मैम वो वाली बाइसिकल है ना, वो बड़ी वाली है, और उसको देता तो वो जो गर्ल्स वाली आती है छोटी वाली देता, या फिर रेंजर टाइप में देता। तो यार बाइसाइकिल गिफ्ट वाले में फिर आप ज़्यादा थीम्स नहीं, वो नहीं ला पाओगे, एक्शंस वगैरह, तो उसको मत हाँ करो। कि मतलब बस वो लाके दे दिया। वही तो ना। अब आ और जाओ। मैम अगेन वो जो स्टोरी, मतलब वो जो पिक्चर थी उसमें वो लड़की खुश है और उसका सरप्राइज वाला शक्ल दिख रहा है ना? तो फिर
एक क्विक रीजन तो होना चाहिए ना कि उसको इससे बिल्कुल ही वो सरप्राइज हुई है। तो इसीलिए तो मैंने बोला अगर आप एक्सप्रेशंस के साथ जाओगे तो फर्स्ट वाला थीम इज गुड, है ना, कि दे आर सेलिब्रेटिंग उनका रियूनियन वगैरह हो रहा है एवरीथिंग, राइट? सो दैट थीम इज गुड, है ना, उसके साथ जाओ, ठीक है? ठीक, अब आ जाओ इस पिक्चर पे। अब मुझे ये बताओ कि ये कुछ लोग हैं, ठीक है, एंड ये लड़की ने कुछ चार्ट वगैरह ले रखा है, ठीक है, और ये कुछ उनको एक्सप्लेन कर रही है, राइट? अब क्या हो सकता है, क्या एक्सप्लेन कर रही हो सकती है ये? हाइजीन और डाइट से रिलेटेड कुछ। हाइजीन एंड डाइट, यस। अच्छा, अगर हम देखें कुछ तो स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट रिलेटेड। ऑफ देम आर वुमेन्स, मोस्ट ऑफ लाइक सारी ही वुमेन्स लग रही है मुझे तो यहाँ पे, है ना? तो क्या ये एक सर्वे करवा सकती है वुमेन्स हेल्थ पे, राइट? सर्वे करवाने के बाद इससे पता लगता है कि वुमेन जो है, मोस्ट ऑफ द वुमेन, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो दे आर एनेमिक, राइट? मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर एनेमिक, यस। सर्वाइकल कैंसर पे भी आप उनको अवेयरनेस दे सकते हो, वो एक सब पार्ट आ जाएगा, वो इसी में ऐड कर देना लास्ट में, ठीक है? बट वो एक हेल्थ सर्वे करवाती है। हेल्थ सर्वे कौन करवा सकता है? इधर शी कैन बी फ्रॉम एनजीओ एंड ऑल, ठीक है, एनजीओ से भी हो सकती है, या कोई मैम वॉइस आपकी क्या हो गया? बहुत लो आ रही है। फिर से लो हो गई वो। एक ना काम चल रहा है बाहर, तो मुझे लगता है इसकी वजह से वो लो आ रही है। अभी ठीक है? नो, हाँ मतलब सुनाई दे रहा है, काम चल रहा है इस तरह की है। वॉल्यूम कम हो गई है आपकी, बस और कुछ नहीं। यार क्यों हो रहा है? अभी ना जैसे बाहर काम चल रहा था तो उसकी वॉइस आ रही थी, तो मेरी कम हो जा रही है। अब वो बंद होता है जब मेरी वॉइस आराम से आने लगती है, ठीक है? तो इसकी वजह से हो रहा है ये। अभी ठीक है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस 10 मिनट की बात और है, ठीक है? देन विल रैप अप द सेशन, ओके? ओके, तो ये कुछ हेल्थ सर्वे वगैरह करवाती है, ठीक है? अब हेल्थ सर्वे कौन करवा सकता है? इधर शी कैन बी अ पार्ट ऑफ सम एनजीओ, है ना, एनजीओ का पार्ट हो सकती है, या फिर कोई हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह भी हो सकती है ये, राइट? और क्या हो सकती है ये? या फिर मैम ये खुद डॉक्टर हो सकती है। खुद डॉक्टर हो सकती है, या फिर इंस्टेड ऑफ ये कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकती है। सोशल एक्टिविटीज ये एनजीओ में आ जाएगा, राइट? NGO उसमें आ में, जाएगा, ठीक है? डॉक्टर भी आप बना रहे हो तो उसको एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर नहीं बनाओगे, शी इज़ अ रेसिडेंट, ठीक है? इधर रेसिडेंट बना दो उसको, या फिर एमबीबीएस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट, ऐसा बना सकते हो, राइट? गॉट इट? क्योंकि एक जो फुल फ्लेजेड डॉक्टर होता है अच्छा वाला, वो आराम से 30 तक पहुंच जाता है, राइट? बट वी आर नॉट इन द 30s, है ना? हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे जो डेजिग्नेशन है और हमारा जो एज आ रहा है, क्या वो मैच हो रहा है, हमारा डेजिग्नेशन और एज, राइट? सो इसका मिसमैच होने से बचना है हमें, ठीक है? नहीं तो साइक का पूरा बैंड बच जाएगा हमारा, है ना? अटायर तो यार सिंपल है, अटायर इज़ गुड। नर्स जैसा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नर्स जैसा है, फिर तो ये सारे के सारे ही नर्स हो गए, राइट? है ना? सबने वही कैप वगैरह लगा रखा है। अटायर से आप नहीं बोल सकते। सी ऐसा लग रहा है कि स्कर्ट पहन रखी है उसने, जो होता है ना लॉन्ग स्कर्ट मिट्टी टाइप की। एक स्पेसिफिक तरह का क्लोथिंग है सबका। स्टिल आप इसको नर्स नहीं लोगे, ठीक है? नर्सिंग ऑफिसर तो ले सकते हैं ना? ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर ले सकते हो, लेकिन नर्स मत लेना। गॉट इट? अ सिंपल फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ले सकते हैं, पोस्टिंग्स होती है ना इन लोगों यस की। यस यस, बताया तो, रेसिडेंट आप ले सकते हो इसको, ठीक है? रेसिडेंट बना सकते हो उसको, फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट बना सकते हो, लेकिन एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर या सिंपल सा नर्स नहीं बनाना है इसको, राइट? अदरवाइज आपके पास वो पावर नहीं रहेगी ये काम करने की। गॉट इट? ओके, तो इसने हेल्थ सर्वे किया बेसिकली, उससे पता चला कि मोस्ट ऑफ द वेमेन आर इधर एनेमिक, ठीक है? मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, इधर प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, और यू कैन से कि जो यंग गर्ल्स हैं दे आर मोस्टली एनेमिक। तो अब क्या करेगी वो कि बेसिकली, नहीं, स्काउट्स एंड गाइड्स का ये नहीं होता है अटायर, दिस इज दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? उनके पास इधर स्कार्फ वगैरह होता है, ऐसे लगा होता है, ठीक है? तो जब सर्वे किया तो उसे पता लगा जो आउटकम्स निकल के आए, उसने उस पर रिसर्च वगैरह की, राइट? देन अपनी टीम के साथ मिलकर, ठीक है, टीम को ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि ये बंदा दिख रहा है उसकी टीम का यहाँ पे, है ना? तो टीम को इंक्लूड करना, टीम के साथ मिलकर वो क्या करेगी, शी विल यू नो मेक बैनर्स एंड पोस्टर्स एवरीथिंग। बैनर्स भी आ गया आपका, इसमें इंक्लूड हो गया। वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही क्या?
नहीं मैम, आ थोड़ी थोड़ी रही आ है रही है, मैम। मैनेजेबल है। दीपिका एक काम करो यार, ईयरफोन्स लगा लो थोड़ा सा, ठीक है? बस थोड़ी देर की बात और है, आई थिंक 5 more minutes. दिस इज द लास्ट पिक्चर, ओके ओके। चलो, तो बेसिकली अब इसमें आप टीम के साथ मिलके बैनर्स एंड पोस्टर्स रेडी करोगे, तो ये बैनर्स एंड पोस्टर्स भी आपका पिक्चर में आगे इंक्लूड हो गया, ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा कि यू आर मिसिंग समथिंग इन द पिक्चर, ओके? फिर अब उनको वो एडवाइस करेगी, उनका डाइट चार्ट वगैरह इसमें शो कर सकती है, ठीक है? डाइट चार्ट बनाएंगी। शी कैन एडवाइस देम कि हाँ आपको क्या खाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्या सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, व्हाट न्यूट्रिशन डू यू नीड, एवरीथिंग, ठीक है? सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, ये सब ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है? देन फिर सिंस अगर वो एनजीओ से है तो एनजीओ की मदद से दे कैन इवन ना डिस्ट्रीब्यूट फूड पैकेट्स एंड ऑल, थोड़ा बहुत, राइट? अगर गांव वगैरह में जा रहा है तो एनजीओ का अगर है वो, अभी देखना वॉइस सही हो जाएगी। तो अगर एनजीओ का है वो, तो ऐसा कर सकते हैं कि फूड पैकेट्स वगैरह या थोड़ा सा राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना? सही हो गई ना, क्योंकि बाहर काम बंद हो गया। ओके, तो राशन वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, सिंस शी इज़ फ्रॉम एनजीओ, ठीक है? अगर उसको एनजीओ का भी पार्ट बना के भी उसको नर्सिंग ऑफिसर बना सकते हो कि वो नर्सिंग ऑफिसर भी थी एंड शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द एनजीओ, तो उस केस में शी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट? ठीक है मैम अब वो एंड में राशन, फूड पैकेट्स और राशन प्रोवाइड करें, या फिर हम ये इंश्योर करें कि प्रॉपर सप्लीमेंट्स फीमेल्स ले रही हो और एक 6 महीने या कुछ मंथ वाइज एक मतलब रेगुलर वो चेकअप प्रोसेस होता रहे। हाँ, चेकअप प्रोसेस होता रहे, उसके बाद यू विल ऐड इन द लास्ट कि ग्रेजुअली यू सी कि वुमेन्स की हेल्थ में काफ़ी सुधार आया, राइट? दिस यू कैन ऐड इन द लास्ट, राइट? सो फिर ऐसे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? कंक्लूजन आ जाएगा एक अच्छा सा, ठीक है? ओके, ठीक है लेडीज़, मज़ा आया क्लास में? थीम्स आए अच्छे अच्छे? यस मैम। यस मैम। ग्रेट, ठीक है, तो अब सेशन एंड करें? मैम जस्ट अ रिक्वेस्ट, बताइए। मैम ऐसी सेशन हर वीक हो सकती है लाइक, ताकि हम फ्लो पे रहे। डेफिनेटली हो सकती है, यू कैन से टू आयुष सर एक बार, उनसे बोल देना, ठीक है? इफ यू ओके मैम। एक्चुअली लाइक दिस सेशन तो उनसे बोल देना एक बार, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है, तो इफ यू विल विश, तो इफ यू ऑल विल विश, तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली, ठीक? अंटिल देन, Yes, ma'am. टेक केयर, जय हिंद एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. मैम। थैंक यू, Thank you, बाय। ma'am.